Okay, guys. So let's just start with our event. So, so this is me, Aman Singh Bhadaria, and this is our event, Android development from Jetpack Compose. So first off, what is Android? Tell you more about Android. Like everyone is. What is Android? Android is just an operating system, just like Linux, Windows, and Ubuntu, and all of that operating system. Android is just another operating system, which is Linux based. So for Android, सबको पता होगा Android सब कोई use करता है. And one Android and more than 5 million available. Okay, so so using Android Studio for the Android. What is Android Studio? Android Studio is an integrated development environment. तो यहाँ पे क्या होता है, वॉट एवर टूल्स वी रिक्वायर फॉर अवर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, अपन को सारे टूल्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं, विच इज क्वाइट फैसिलिटी. सो 2019 में गूगल ने क्या किया था, गूगल ने कॉटलिन को एंड्रॉइड डेवलपमेंट के So हम इस event में using Kotlin consolidated environment where these are just some facts and figures. So skipping the facts and figure part, what is Kotlin? Kotlin is huh? Screen visible? Okay. So, what is Kotlin? Kotlin is just another programming language, just like Python, C++. C is just another programming language dedicated to Android app development. All right. So Kotlin programs and features. There are many features which, like initially, अपन Java Android development कुछ setbacks थे. Setbacks को ध्यान में रखते overcome those setbacks. So Kotlin is much better than Java when it comes to Android development. So why choose over Java? I just told you about that. Okay, so now we'll be starting our basics for Kotlin. So I would like you guys to open Kotlin Playground over your screens. So this is Kotlin Playground. What you have to do is you just have to type Kotlin Playground and open the first link. Okay, so this is Kotlin Playground. Compiler for Kotlin. So बाकी की लैंग्वेजेस की Kotlin भी एक you all must be familiar with C++, right? तो इसका पूरा syntax C++ जैसा ही है. Like if you want to print hello world, what you will do, print hello
world. So there's a trend programming language you are starting with. Hello world, there is like three different types, right? आप अपनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे लाइक प्रोग्रामर्स का पहला प्रोग्राम क्या होता है? हेलो वर्ल्ड. तो कॉटलिन के साथ भी अपन क्या करेंगे? हमने हेलो वर्ल्ड. ग्रेट. Starting with Android development, I would like to build some concept like what are functions? What are functions? Functions are nothing but to reuse segments. Okay. So segments क्या लिखेंगे? Function clear करेंगे जो एक task जैसे परफॉर्म करेगा, अपन खुद जितनी बार कॉल करेंगे उस फंक्शन को उतनी बार वो टास्क परफॉर्म होगा. लाइक फॉर like you example है like I have created a function using keyword fun. Okay, sorry for the glitch, guys. Technical issue आ जाएगा बigger बार. So is my screen visible? Is my screen visible to all? Okay, I think the screen is okay. Heading back. हाँ, so here we declared a function. The function work was to sum. हम करेंगे. हमने जो फंक्शन बनाया है वो उसका एडिशन रिटर्न करेगा. एडिशन रिटर्न करेगा. Here we call the sum function and we print the return value. So हमें क्या मिला? 57. If we try to add 234 to okay, this is the output. So our function is running. Okay, so there then comes the for loop, while loop. There are many statements, right? So many statements. So I'm gonna tell you about a when statement, which is new. Like C++ के साथ आप लोगों ने काम किया है, तो you must be knowing about while, do while, and for loop, and another if statement, else statement. What new in the Kotlin is the when. Statement. Okay, so what is the when statement? Like switch in C++, there was a switch statement, which what we do is हमें बार बार if else वाली condition जो हम लगाते हैं, हम switch statement से easily उससे access कर सकते हैं. Okay, so here I create another function that will be named as cases. Like we are going to pass cases in. उसके अंदर हम is my screen visible? All right, हाँ. So हम लोग ऑब्जेक्ट पास करते हैं और हम बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट का टाइप कुछ भी हो सकता है. Right? I don't know what type of value I want to pass in this function. तो उसका कुछ भी टाइप हो सकता है और उसका रिटर्न टाइप भी कुछ भी हो सकता है. I don't know what I built my function. So मैंने
एनी दिया यहाँ पे, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है उसका डेटा टाइप. ओके, I have to use a when statement. अगर मैं 1 पास करता हूँ तो रिटर्न कर दो, राइट. और अगर मैं उसमें how are you, return I'm fine, thank, alright. और अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं लिखता हूँ, लाइक if I enter any random value, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज हैं, नेटवर्क इश्यूज हैं एक्चुअली. सो लेट्स विद अवर लर्निंग. हाँ, तो अगर मैं 1 पास करता हूँ अपने केसेस पे, दैट इज अगर मैं केसेस फंक्शन में 1 पैरामीटर पास करता हूँ तो वो मुझे 1 लिख के देगा, दैट इज इन कैरेक्टर्स. एंड अगर मैं अपने फंक्शन से पूछता हूँ कि हाउ आर यू, कैसे हो, तो वो बोलता है आई एम फाइन, थैंक यू ना. और अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं डालता हूँ, मैं कुछ रैंडम वैल्यूज डाल देता हूँ, लाइक वट एवर इट इज अपार्ट फ्रॉम 1 एंड हाउ आर यू, तो क्या करो, रिटर्न करो nothing. Okay, now what I have to do, I have to call this in our main function. So I will call this in our main function like print is cases 1. Okay, and then we also ln cases how are you, and then we print any random value cases, and we pass the parameter, any random parameter like 23, right? Now we will call the function. First I just backslash n to change the line for every print statement, slash n. Okay, yeah. Now if I run it, so when I pass the first one in the cases parameter, the when statement was initiated, and क्योंकि हमने उसमें 1 पैरामीटर डाला था तो उसने हमें 1 रिटर्न किया और लाइन चेंज कर दी, राइट. दूसरे स्टेटमेंट में हमने हाउ आर यू उससे सवाल पूछा तो उसने बोला आई एम फाइन, थैंक यू. एल्स जब हमने कोई रैंडम वैल्यू डाली तो उसने नथिंग रिटर्न कर दिया. इट्स क्वाइट इजी, राइट. सो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब जो बेसिक होते हैं सी प्लस प्लस की, इन सब पे वर्क किया होगा. सिंटैक्स पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट. एंड नाउ वी कैन जस्ट skip to the development part, right? This is our Android development. This is some projects I created recently. What we have to do now, we have to create a new project. Like सबसे पहले आपको Android Studio डाउनलोड करना पड़ेगा, right? तो Android Studio डाउनलोड कैसे करोगे आप? आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी जहां से आप Android Studio सीधा डाउनलोड कर सकते हो. Android Studio डाउनलोड करने के बाद what you have to do is you have to आपको है ना, क्योंकि आप जो आप ऐप बनाओगे उस ऐप को आपको रन करके भी देखना पड़ेगा. तो उस रन करने के लिए there are several ways which I'm going to show you. Okay, so उस बहुत सारा cost. So for now I just create a new project.
there are so many types of projects, okay? But since we are working with Jetpack Compose, I am going to create one empty compose activity. Okay, here we go. मैं इसका नाम रख देता हूँ, our name of our app would be Compose. Okay, so अगर मैं Jetpack एक्टिविटी नहीं लेता तो वो मुझसे कि आपको जावा में कोड करना है कि कॉटलिन में. बट सिंस आई हैव ऑप्टेड फॉर जेटपैक कंपोज, तो क्या होता है कि जेटपैक कंपोज इज ओनली फॉर कॉटलिन यूजर्स, नॉट फॉर जावा यूजर्स. ओके, ऑल्सो है मिनिमम एसडीके, दैट इज आपका जो आपकी जो ऐप की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, मैंने यहाँ पे लॉलीपॉप डाल के रखा है, विच इज अभी के जितने भी फोन्स आ रहे हैं वो इससे ऊपर ही आ रहे हैं. सो हाँ, वो आपको ये लिख के भी बताता है, योर ऐप विल रन on approximately 98.8% of the devices, which is fine for me. Okay, so here I create a new project. So Android Studio is very heavy environment. Okay, like आप देखोगे ये लोड हो रहा है, ये कुछ टाइम तक लोड करेगा, तो आप ये मत समझना कि आपका सिस्टम हैंग कर रहा है. इट्स जस्ट सो हैवी कि ये टाइम लेता है. तो जब तक ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इज एंड्रॉइड स्टूडियोज लेआउट बेसिकली. सो दिस इज दी, ये आप साइड में देखोगे बहुत सारे पैनल्स हैं, नीचे भी बहुत सारे पैनल्स हैं, राइट में भी बहुत सारे पैनल्स हैं. तो फ्रीक आउट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज द प्रोजेक्ट पैनल. ओके, तो ये लोड हो गया. प्रोजेक्ट पैनल पे आपको यूजिंग लाइक आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे होंगी. रिसोर्स में जो आपके जितने भी ड्रॉएबल्स, मतलब जितने भी आपके फोटोज, आइकन्स एंड व्हाटएवर द थिंग्स, ऐप का लोगो, सब कुछ इधर आएगा. स्ट्रक्चर, फेवरेट और बिल्ट वेरिएंट्स पे भी अपन स्किप करते हैं. बट इम्यूलेटर, व्हाट इज इम्यूलेटर? जब मैं अपना मैं हर बार अपना फोन पे रन करके ऐप देख नहीं सकता ना, मैं बार बार एक सेटअप बनाऊंगा, उसको अपने फोन पे डालूंगा, फिर रन करके देखूंगा वो कैसा चल रहा है. What Android Studio has provided me with is one emulator. This emulator मतलब अभी ये दिख नहीं रहा है, बट when जब मैं रन करूंगा तब यहाँ पे एक फोन की स्क्रीन आएगी जिसमें मेरा ऐप रन करता हुआ दिखेगा. राइट, और सिमिलरली अपन को अभी इन दोनों से कोई काम नहीं है, हमें कोड स्प्लिट और डिजाइन. ओके, सो यहाँ पे डिजाइन फंक्शन भी, डिजाइन पैनल है. लाइक मुझे हर बार अपने फोन पे भी रन करने की जरूरत नहीं है, मुझे इम्यूलेटर की भी जरूरत नहीं है. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट स्विच टू डिजाइन पैनल, और यहाँ पे मुझे अपना जो कुछ भी मैंने बनाया होगा वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा. एंड देयर इज दिस स्प्लिट पार्ट, लाइक आधे पे कोड एंड आधे पे माय डिजाइन. सो दिस इज क्वाइट feasible, flexible, whatever you want to say. हाँ, moving back to the coding part, like first I want to show you the files. Okay, you can see this manifest file. This manifest file, what is this manifest file? बहुत सारा कोड दिखाई दे रहा है. मुझे फ्रीक आउट करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली ये सारा कोड मेरे लिए एंड्रॉइड स्टूडियो ने मुझे करके दिया है, मुझे इसको समझने की जरूरत भी नहीं है. बट मैं बता देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है. एक्चुअली क्या हुआ है कि अपन जितनी भी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं इन आवर फर्दर प्रोजेक्ट्स, वो यहाँ पे अपने आप लिंक हो जाएंगी. मैनिफेस्ट फाइल इज लाइक अ प्रोजेक्ट फाइल व्हिच लिंक्स एवरीथिंग यू क्रिएट इनटू वन फाइल. ये एक एक्सएमएल फाइल होती है, HTML फॉर एंड्रॉइड. ऑलराइट, सो ओके, मैनिफेस्ट फाइल हो गया है. देन मूविंग टू यूआई थीम. हर फोन की एक थीम होती है जिसको अपन सेट करना चाहते हैं, कलर, शेप, थीम टाइप्स. ओके, तो अपन वो थीमिंग भी सेट कर सकते हैं, विच वी विल लुक इनटू इन आवर फर्दर प्रोजेक्ट्स. और मेन एक्टिविटी फाइल, अपन जो मोस्ट वर्क करने वाले हैं वो अपनी मेन एक्टिविटी फाइल में करने वाले हैं. सो व्हाट इज दिस मेन एक्टिविटी फाइल? मेन एक्टिविटी फाइल इज लाइक अ पेज लाइक हर ऐप का एक फ्रंट पेज होता है. सो अभी हमने फ्रंट पेज को मेन एक्टिविटी बोल, फाइल्स क्रिएट करेंगे, वो उतने पेजेस क्रिएट होते जाएंगे, एंड दोस पेजेस विल बी अवर एप्स के डिफरेंट पार्ट्स. ओके, सो व्हाट आई कैन डू नाउ, आई कैन जस्ट शो यू व्हाट दिस कंटेंट
main activity is. Like if you can first see, there is so many. यहाँ पे भी घबराने की जरूरत नहीं है. ये सब हमने import किया है to access every functions and whatever the feasibility we want in our app. Like if you can see, मुझे compose use करना था तो मैंने composable use कर लिया है. Obviously में मैं text use करूँगा तो मैंने text भी import किया है. हर चीज़ हमें import करनी है. Surface import किया है, theme import की है and everything import करनी है और अपन side by side करते जाएंगे. हमें सब कुछ initially import करने की ज़रूरत नहीं है. Okay, now I have told you about functions. तो यहाँ पे हमने एक function greeting नाम का greeting function. तो greeting function में हमने पैरामीटर दिया है the name and what will it will return the hello name. अभी हमने Kotlin में किया था. This is just a Kotlin type. तो greeting function में हमने name पास किया जिसका data type था string and उसने return क्या किया, उसने text return जिसमें वो क्या दे रहा है, hello name and क्या है कुछ और करता है like hello Shiva. Hello Shiva. So what it will do, it will return the greeting function and the greeting function will say hello. Do this in our design panel. Again, Android Studio is little heavy, so loading थोड़ा सा time लेती है, so you have to be patient. Studio की सारे बैकग्राउंड बंद कर दो cause okay, so यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा क्या है, hello Shiva. Okay, hello Shiva is there. हमने एक फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन ने हमें hello Shiva रिटर्न कर दिया. Great. So now what we will do, we will okay. तो हम एक कैसा ऐप बनाना चाहेंगे, हम एक बेसिक ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें हम एक Jetpack Compose का लोगो डाल देंगे. उस Jetpack Compose के लोगो के नीचे हम अपना नाम डाल देते हैं. उस नाम के साथ हम क्या डालते हैं, हम एक इमोजी भी डाल देते हैं और या वी विल यूज सम टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट एंड सम फोटोज. तो मतलब इस बेसिक लेआउट के हर चीज मतलब वी विल बी एक्सप्लोरिंग द डेवलपमेंट पार्ट. ओके, अगेन रिटर्निंग बैक टू कोड. आई डोंट वांट टू प्रिंट हेलो नेम. तो मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मेरा ग्रीटिंग मतलब अभी है ना, मैंने अपने ऐप का ऑनबोर्डिंग पेज डिजाइन कर रहा हूँ. लाइक whenever our app is opening, what comes in front of our eyes, that is this page, greeting. Okay, तो इसमें मैं पहले क्या करना चाहता हूँ, मैं एक इमेज डालना चाहता हूँ. तो मैं सिंपली इमेज टाइप करूँगा और मुझे इमेज मिल जाएगी. ओके, अब इमेज में पेंटर और कंटेंट डिस्क्रिप्शन कॉलम्स आ रहा है कुछ डालने के लिए. सो कंटेंट डिस्क्रिप्शन में क्या मतलब, आपकी इमेज क्या है, मैं बोल दूंगा ये मेरे Jetpack Compose का लोगो है. अब मुझे पेंटर पे अपने Jetpack Compose को डालना है, लोगो को डालना है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू रिसोर्स मैनेजर एंड देयर यू कैन सी प्लस. वहां पे हम लोग इंपोर्ट ड्रॉएबल्स यूज करेंगे. सो मेरे डाउनलोड्स पे मुझे ये Jetpack Compose का आइकन दिख रहा है, ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रख लिया था. सो यू गाइस आल्सो कैन डाउनलोड एनीथिंग. दिस इज आवर लोगो. ओके, ये मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ. सिंपली इंपोर्ट हो जाता है, सुपर इजी. लाइक व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट क्लिक ऑन द प्लस बटन, इंपोर्ट
whatever file you want to import, and just click OK and then import. All right. Okay. So now drag and drop the file. Okay. Mm. ओके, तो अभी इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको कुछ चीजें लाइक आपको मगअप करनी पड़ेंगी, लाइक दिस सिंटैक्स आपको इनिशियली मगअप करने पड़ेंगे, बट इवेंचुअली यू विल लर्न हाउ, और सारी मेहनत सफल हो जाएगी. राइट राइट. ओके, तो अब मैं अगर अपना स्क्रिप्ट खोलूं, मैं रिफ्रेश करूं. ओके, रिफ्रेश अगेन टेक सम टाइम. This is load actually. Don't think this is okay. So हमें अपना लोगो मिल गया, राइट? सुपर इजी. हाँ, इसके बाद हम क्या चाहते हैं, हमारे इस लोगो के नीचे कुछ टेक्स्ट ऐड कर दें. हाँ, लाइक व्हाट टेक्स्ट कैन वी ऐड? नेम पास किया है अपने ग्रीटिंग. अगेन भूलना नहीं, ग्रीटिंग जस्ट एक फंक्शन है जिसको हमने अपना फर्स्ट पेज, लैंडिंग पेज बनाया है, और उसमें हम कुछ वैल्यू एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं. तो वैल्यू का नाम हमने क्या डाला था, दैट इज नेम. तो क्या करो आप, यू कैन प्रिंट द नेम. ऑलराइट. like what I can say, hello dollar name. ओके, सो अब ये क्या करेगा, अगेन इफ आई रिफ्रेश माय पेज, रिफ्रेशिंग टेक्स टाइम ना, तो इसने ऊपर लिखा है, ऊपर क्यों लिखा है? ओके, एक्चुअली हुआ क्या है, ये क्या है, तो हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया. अगर आप ऐसे ही के नीचे एक करके सब कुछ डाल दोगे, मतलब इमेज, टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद एक और टेक्स्ट और फिर इमेज, तो ये क्या करेगा, सबको ओवरलैप कर देगा. तो हमें ना इसे अलग से बताना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे ओवरलैप मत करो, उसे ओवरलैप मत करो, उसे ओवरलैप मत करो, उसे आप एक कॉलम में डाल दो. CULUMN. सुपर इजी. बस मैंने क्या किया, मैंने कॉलम लिख दिया. हाँ, कॉलम लिख दिया कि जो कुछ भी मैंने इसके अंदर डाला है उसे कॉलम में प्रिंट करो. ओके, नाउ अगेन इफ आई रिफ्रेश, हाँ, तो कॉलम में आ गया, लोगों के नीचे नेम है, राइट? ग्रेट. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, लाइक नाउ मैं मैं सोच रहा हूं कि मैं एक इमोजी डाल देता हूं. मैं एक इमोजी डालना चाहता हूं, इमोजी डालना चाहता हूं. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट, ओके सॉरी, हाँ, okay, what I will do, I will just write the code of emoji. Like what is the, like here I am writing one code.
It is 0 x 1 f 4 9 e. ओके, सो ये एक इमोजी का यूनिक कोड है. तो अगर आप नहीं जाने तो अपने कीबोर्ड में भी जो भी इमोजीज होते हैं ना उनका एक यूनिक कोड होता है. लाइक अपना कंपाइलर या फिर व्हाटएवर अपना सिस्टम अपना ओएस तो नहीं जानता ना कि वो इमोजी क्या है, वो तो बस 0 और 1 की वैल्यूज जानता है. हमने हर एक इमोजी को एक यूनिकोड प्रोवाइड किया है. ओके, तो यूनिकोड के चलते वो पहचान जाता है कि व्हाट इज आवर इमोजी. ओके, सो कैरेक्टर टू दैट इज ऐसे आप एक सिंटैक्स की तरह ही मानिए कि लेट मी बस फिनिश. ओके, ये भी क्या करेगा, इस फंक्शन को इट डज इसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है. नाउ व्हाट दिस कैरेक्टर टू कैर डू, ये अपने यूनिक कोड को काइंड ऑफ डिकोड कर, इसकी जो भी वैल्यू छुपी होगी दैट इज इमोजी, इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो उसे इमोजी वाला लुक दे देगा. लाइक इफ अगेन आई रिफ्रेश माय पेज, so here you guys can see it is a heart shape. Okay, heart shape. The emoji was 2 hearts. दिल चिपकाया मैंने. ओके, तो मैं हार्ट के बाद भी कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ. ओके, नाउ दीज टेक्स्ट वुड बी अगेन टेक्स्ट. मैं इसमें लिख देता हूँ Jetpack Compose is great. It is actually Jetpack Compose is great. Okay. Again, I want to refresh this just to check that my code has no errors. Okay, so everything we have on our page. Now what we have to do is we have to make it look little bit pleasing to our eyes. हाँ, तो हम वो कैसे करेंगे, चेंज कर सकते हैं, हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं. तो आई विल डू, मैं सब कुछ सेंटर कर देता हूँ. ओके, लाइक वॉट एवर द कंटेंट इज अलाइन इट टू सेंटर. ओके, तो इसका कोड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सेंटर, सेंटर हॉरिजॉन्टली. तो आपका आधा काम तो एंड्रॉइड स्टूडियो या इंटेलिसेंस कर देता है. आप 4 शब्द लिखते हो, वो आपको पूरा आपका whatever the code is it provides you with that. So मैंने इसे सेंट्रली अलाइन कर दिया है. नाउ इसके साथ मैं क्या कर देता हूँ, मैं ना ओके, आई एम सॉरी. हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि फिल मैक्स विथ कर दो. मतलब मेरा जितना भी स्क्रीन का हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी, मेरा जो भी डाटा होगा, मैं कॉलम में जो एक एक पीस में डालूंगा उसको वो पूरी स्पेस दे देना. ऐसा नहीं हो कि मेरे फोटो के बगल में अगर 2 इंच की जगह बची है तो वो उसमें हेलो लाइन में शिवा लिख दे, विच वुड बी अ डिजास्टर. मैं अपने बनाना चाहता हूँ, मैं अपने ऐप को आंखों के लिए सूदिंग बनाना चाहता हूँ, मेरी आंखों को अच्छा लगना चाहिए. सो व्हाट आई कैन डू इज नाउ आई कैन रिफ्रेश दिस एंड व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज कि मेरा ऐप जो होगा वो अभी पहले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा होगा. ओके, हियर यू कैन सी
हेलो शिवा, द इमोजी जेटपैक कंपोज इज ग्रेट। ये अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ राइट हुआ। So now what I can do, I can set sizes. Okay, मैं sizes change कर सकता हूँ। मैं अपने इमेज का साइज चेंज करना चाहूँ क्या? मुझे लगता है इमेज का साइज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है। तो मैं अपने पहले टेक्स्ट का साइज चेंज कर देता हूँ। हाउ कैन आई डू दैट? मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बस वहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट साइज इक्वल टू 30.sp। ओके, नाउ यू कैन सी ये एक एरर शो कर रहा है। मेरा कोई एरर है नहीं, बट स्टिल ये एरर शो कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एसपी इंपोर्ट नहीं किया है। मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आप जो कुछ भी नए वर्ड्स यूज करोगे आपको उसे साइमल्टेनियसली इंपोर्ट करते रहना पड़ेगा। तो अभी मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो को ये पता नहीं है कि मैं एसपी भी यूज करना चाह रहा था। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि लाइक android.compose.ui यूनिट, एसपी इज अ यूनिट, क्या मैं इसे इंपोर्ट कर दूं? मैंने बोला इंपोर्ट कर दो, तो उसने इंपोर्ट कर दिया। तो मेरा फॉन्ट साइज चेंज हो चुका है। नाउ व्हाट एल्स आई कैन डू, मैं इसका फॉन्ट ही चेंज कर देता हूँ ना, मतलब फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉन्ट फैमिली इक्वल्स टू फॉन्ट फैमिली डॉट सेरिफ। ये एक बड़ा अच्छा दिखने वाला फॉन्ट है। फॉन्ट का नाम है, जस्ट फॉन्ट का नाम, जस्ट लाइक कैलिब्री, रोमन, राइट। सो थोड़ा सा अच्छा दिखता है ये। So what else I can do? I can change its color. Okay, मैं अपने नाम का कलर चेंज कर सकता हूँ। शिवा, हेलो शिवा जो लिख रहा है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ उसका कलर। So how can I do that? I can just write color और उसमें मैं कलर डाल देता हूँ। अब आप ये बात जाननी जरूरी है कि जितने भी कलर्स होते हैं ना, वो एक RGB फॉर्म फॉलो करते हैं। RGBA क्या बोलते हैं उसे, यूनिकोड फॉलो करते हैं। लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा की वैल्यूज के साथ आप क्या कर सकते हो, आप अपने ना कलर्स डिजाइन कर सकते हो। सो एक प्री कलर आई वांट टू गिव, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके। फिर मैंने अपना कलर्स के कोड लिख दिए हैं कि 56 रेड, 122 ग्रीन, 179 ब्लू एंड अल्फा की वैल्यू 255। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द ओपेसिटी, मतलब कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितना क्या, दैट इज राइट। सो नाउ व्हाट, अपना कलर चेंज हो चुका है, फॉन्ट चेंज कर दिया है, हमने साइज चेंज कर दिया है। नाउ इफ आई रिफ्रेश, refresh is a headache, right? Like obviously Android Studio is a heavy project, heavy software। तो नाम चेंज हो चुका है। ओके, सो अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट का क्या करूँ आप, फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दो। एक्चुअली बोल्ड भी मत करो, इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर दो। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मुझे अपना फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड नजर आएगा, राइट।
राइट, बढ़िया। सो नाउ मैं सेम चीज अपने जेटपैक कंपोज के साथ भी करना चाहूंगा। जेटपैक कंपोज इज ग्रेट, तो उसको आप छोटा नहीं रख सकते ना। तो मैं काम करता हूँ, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, बस इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल पेस्ट इट हियर। ठीक है, अब मेरे जेटपैक कंपोज का भी साइज चेंज हो गया है और फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है, दैट इज सैंस सेरिफ। तो अब ये आंखों को थोड़ा अच्छा लग रहा है। बट मैं अपना इमोजी का साइज भी चेंज कर देता हूँ। अगेन इमोजी का साइज कैसे चेंज करूंगा, मैं फॉन्ट साइज कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और आई कैन पेस्ट इट हियर। ओके, फॉन्ट साइज भी अपना चेंज हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको 40 कर देता हूँ। 40 भी छोड़, मैं 50 कर देता हूँ, बड़ा देख, राइट। नाउ इफ यू सी, फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया है। हेलो शिवा आई थिंक थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, तो मैं उसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, लाइक would be great. Okay, now it's looking good. इसको मैं 80 कर देता हूँ। Okay, good. Now it is looking good. Great. बढ़िया। So now ये मेरे ऐप का लेआउट होगा। This layout, this will be our layout. कि मेरा ऐप जो होगा वो ऐसा दिखेगा, ऐप मेरा ऐसा दिखेगा, राइट। तो अब मैं इस ऐप को आपको रन करके बताता हूँ। ओके, बिफोर दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस बिल्ड पैनल। तो बिल्ड पैनल क्या करता है, यहाँ पे आपकी जितनी भी एरर्स होंगी वो शो होंगी। लाइक कोड में मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं कुछ एरर कर दूँ, मैं ग्रीटिंग का नाम ही चेंज कर दूँ, तो मैं अगर इसको यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे अपना एरर मिल गया। इसने क्या बोला है, 34 और 73 पे एरर है, 34 और 73 पे एरर है। सो जहाँ जहाँ मैंने ग्रीटिंग लिखा था वहाँ पे एरर आ गया, कॉज मैंने अपना नाम ही चेंज कर दिया फंक्शन का। तो हाँ, मैंने अब देखा कि 34 73 में एरर है। मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ कि हाँ ग्रीटिंग फंक्शन में कुछ एरर है, तो मैं फंक्शन की तरफ जाता हूँ, मैं देखता हूँ ओह मेरा नाम ही सही नहीं डाला है मैंने अपने फंक्शन का। सो मैं इस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ, राइट। दिस इज फीजिबल एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट है, व्हिच इज हैंडी, कोई भी सीख सकता है। सो नाउ मैं क्या करूँगा, मैं आपको ऐप में रन करके बता, यू कैन सी दिस प्ले बटन। बिफोर दैट, जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर, आपको ये एक एमुलेटर, एक फोन का एमुलेटर डाउनलोडेड नहीं मिलेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे पास एक फोन है, जिसका मैंने नाम कुछ दे के रखा है, बट जरूरी नहीं है ना कि हर बार आपको मिले, मतलब आपको नहीं मिलेगा, आपको वो बनाना पड़ेगा। so how can you make it, you just have to press create device। तो आप चूज कर लो आपका डिवाइस कैसा है, कौन सा चाहिए आपको। फोन ही चाहिए ऑब्वियसली, आप टीवी तो बनाओगे नहीं। क्या करता हूँ मैं, गैलेक्सी नेक्सस चूज कर लूँ, कोई महंगा सा फोन चूज करते हैं, पिक्सल का साइज भी बड़ा है, तो मैं नेक्स्ट करूँ।
तो यहाँ पे वेरियस वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड मिलेंगे मुझे। मैं कौन सा डाउनलोड करना चाहता हूँ? लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो, पाई, QRS। These are just um, names of Android, different versions of Android. मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज मैं पाई चूज कर लूँ। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट क्लिक नेक्स्ट और वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ये फाइल बहुत बड़ी होती है, लाइक आप अपने लैपटॉप पे एक फ़ोन इंस्टॉल कर रहे हो, तो मैं नहीं करना चाहता अभी। यू गाइस कैन गो थ्रू द प्रोसेस एंड डाउनलोड योर ओन एमुलेटर। हाँ, मैं एक एमुलेटर डाउनलोड करके नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि नेट की पाबंदी है मेरे पास। Just go through the process. What you have to do, you have to just go to the drop down of this panel, device manager, create device, select your phone and select your Android version, and boom, your device is ready. So now मैं आपको emulator पे प्ले करके बता रहा था, राइट? ओके, मैंने प्ले बटन दबाया है, मेरा emulator रन हो रहा है, लाइक फोन स्विच ऑफ से ऑन हो रहा है। सो यू कैन सी दिस इज आवर ऐप, दिस इज आवर ऐप, प्लीजिंग टू आवर आइज। जो कुछ भी हमने कोड किया, हमने डिजाइन पैनल पे देखा, वो एक फोन पे भी रन कर रहा है। एंड दिस इज फुली फंक्शनल फोन। लाइक इस फोन का ड्रॉप डाउन है, या थोड़ा सा हैंग कर रहा है फोन, गरीबों का फोन। या तो एवरी फंक्शन इज देयर, लाइक ड्रॉप डाउन, आई कैन एडजस्ट ब्राइटनेस एंड व्हाटएवर इट इज। 100% चार्ज है मेरा फोन। दिस इज आवर एमुलेटर। एमुलेटर में हम बैक जाएं, दिस इज आवर एमुलेटर। जो भी चीजें होती हैं आपके फोन पे, आप इधर कर सकते हो। हर चीज फंक्शनल है। Access Google from your phone, whatever function you can do from your phone, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। या राइट। सो नाउ मैं अपना कंपोज ऐप वापस खोलूं। लाइक ऐप ड्रॉअर में मेरे को अपना कंपोज ऐप भी मिल जाएगा। मेरे और भी ऐप्स हैं यहाँ पे, लाइक ये सब ऐप्स मैंने फॉर प्रैक्टिस पर्पस बनाए थे, वेरियस ऐप्स। राइट नाउ मैंने ये कंपोज ऐप बनाया है आपके सामने, and which is quite pleasing to our eyes. So yeah, this was all. Okay. तो ये अपना कोड बन चुका है। मैंने आपको सारे फंक्शनैलिटीज बता ही दी हैं। ये जो कुछ भी कोड है ये आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यू कैन एक्सेस आवर गिटहब, और आपको हमारी गूगल की वेबसाइट से मटेरियल मिल जाएगा। ओके, गूगल अपने कॉलेज का गूगल डेवलपर्स क्लब का वेबसाइट जो है, उससे आपको कंटेंट मिल जाएगा। नाउ इफ आई जस्ट स्लाइड बैक। ओके, हाँ, आप लोग जो
मैंने जो इमोजी यूज किया था वो मैंने कैसे किया था. दिस इज जस्ट अनदर वेबसाइट, आपको गूगल पे मिल जाएगा. इफ यू जस्ट राइट इन सर्च फॉर इमोजी. Okay, browser isn't responding. Wait for a moment, please. हाँ, emoji codes. So just go for first website and यहाँ पे आपको various emojis मिल जाएंगे. I will search for. Sorry guys, my browser isn't responding. This is just because of the Android Studio, okay? Like Android Studio इतना heavy है कि उसके साथ कोई और दूसरा ऐप जो आप वर्क करोगे वो उसे खा जाएगा. मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. एक्चुअली वी जस्ट फिनिश्ड अवर बिजनेस. मैंने एक ऐप बना के दिखाया है आपको जो कि फुली फंक्शनल था. हाउ टू access various features of the Android Studio. Also, I told you about the Android Kotlin Playground, which is a simulator for the Kotlin programming language. Okay, now it's functioning. मैं अगर इसमें हार्ड सर्च करूं, yeah, so this was the Unicode. Okay, so this was the Unicode which I used. I used this one. You guys can try any of the Unicode. Like ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है, बट आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हो, बीटेक कर रहे हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली वी आर सेंडिंग. लाइक जब भी आप स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे कोई इमोजी सेंड करते हो, शेयर होता है, कोई फोटो से शेयर होती नहीं है, वो एक यूनिकोड शेयर होता है जिसका एक हर एंड्रॉयड ऐप के अंदर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, दैट इज एंड्रॉयड के अंदर, उस यूनिकोड का एक मतलब होता है. वो मतलब अपन एक्सेस करते हैं. ओके, हाँ. So you can try any of these emojis. Now, here I told you about the Kotlin Playground. What Kotlin Playground is, बता दिया था मैंने. It is just a compiler, online compiler. Huh? This is just an online compiler where you can try your code, run them. Like हर बार आप Android Studio पे तो work नहीं करोगे ना. Okay. So I guess I've covered pretty much everything I wanted to cover. Any doubt? If anyone has any doubt? Guys, if you have any doubts, you can type in chat box so you can clear the doubts. So I think no one has any doubts. So we will conclude today's session. So guys, next session will be conducted on 20th at 9. So hope you guys enjoyed this today's session. So I think we can conclude today's session, Aman. So, sir, I hope you guys enjoyed today's session. Let me stop this. Huh. So today's session went quite as much as I planned. So हमने सब कुछ कवर कर लिया है. और जो भी डाउट हो आपके, लाइक अगर अभी दिमाग पे कोई डाउट नहीं आ रहा है, फ्यूचर में आए, so you can contact your seniors, you can contact us. JDSC की team always there to help you. We always cherish every idea. And
yeah, this was all from our side. You guys can leave now. Thank you, everyone. So, guys, if you have any doubts, you can reach to us, any of us technical team, and you can also reach facilitator. So, all you can guys can leave.